और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। और 30 अप्रैल 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल आदि विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। साथियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO कोलकाता के गवर्नर हाउस में एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। 5 पद्म पुरस्कार विजेता और पश्चिम बंगाल की 11 हस्तियों इस कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को राष्ट्र निर्माण में उनके बहुमूल्य और उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। She had written Asta's memorable experience was mentioned by the Honorable Prime Minister. এর কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার করে বলেছেন ৯৮তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে, মানে মাত্র 2টি মন কি বাত অনুষ্ঠানের আগে। He will now be felicitated by the Honorable Governor. ধন্যবাদ। পরমাত্মানন্দ মহারাজ আছেন, প্রীতম সরকার, মূলত এদের 3 জনের উদ্যোগে ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালন সমিতি they have brought back the Kumbh Mela in Triveni after 700 years. This was a tradition which had continued for thousands of years but then had died. Somehow it was lost in posterity, but they have brought it back. Exceptional and had received the Padma Shri. A scientist. जब पीएम कुछ कहते हैं तो पूरा देश सुनता है और वह पूरे देश में एक गहरा बदलाव करते हैं। द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें मोदी सरकार के 8 साल और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बंगाल के क्रांतिकारियों पर विशेष महत्व के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव और चयनित उद्धरणों को प्रदर्शित किया गया। মানুষের মনে অল্প বয়সে এই ধরনের একটা কোনো ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেলে সঙ্গে একটা শক্ত শপথ বিজয়ী আছে, তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবো। অঙ্কিতা দাস, অঙ্কিতা পাল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চিকিৎসা করা হয় দরিদ্র মানুষের। আজকে তিনি আসতে পারেননি এবং এই কাজটি তিনি কিভাবে করেছেন, লোকের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে বাসন মেজে এইভাবে রোজগার করেছেন। সুভাষিনী অজয় মিস্ত্রি টু কাইন্ডলি কাম আপ এন্ড ওয়ান্স अगेन বাড়ির গয়নাগাটি বিক্রি করে এবং পাশে পেয়েছেন অনেক সহৃদয় ব্যক্তিকে। এদের সকলের সহায়তায় গড়ে তুলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তার কথা বলে
Thank you so much. Work there are doing true work. Even one lamp in the সকলের আশীর্বাদ tourism initiative Sheikh Sarwate. Terrain of Darjeeling district, which has truly we just got the good news that the Honorable Governor would like to visit the Gurdam village. And this is the best time to beat the heat of summer. অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ মানুষ, তার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন. He would now be felicitated by the Honorable Governor, Gaurav Tekriwal, Master of Vedic Mathematics. এবং এই কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া শ্রীপতি টুডু তার নিজস্ব ভাষায়, অর্থাৎ কিনা যেটাকে বলা হচ্ছে 01 চিকি অর্থাৎ সাঁওতালি ভাষায় তিনি অনুবাদ করেছিলেন, যাতে সবার তো এই অধিকার আছে যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানা নিজেদের ভাষায়। সেই অসাধারণ কাজটি করেছেন শ্রীপতি টুডু, who has translated the Constitution of India, thus making his people aware of their rights. Sripati Tudu being felicitated by मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है, मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब से थोड़ी देर में हम सभी और आकाशवाणी के सौजन्य से मिलकर साथ देंगे। मन की बात वो कार्यक्रम है जिसके द्वारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने की आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे
अपने विचार, अपने सुझाव, अपने अनुभव हम सबके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री जी हमें उन साधारण लोगों के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने असाधारण काम किया, हमें रास्ता दिखाया, हमें प्रेरित करते हैं। आज यहाँ राजभवन के इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके काम या जिनकी उपलब्धि के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताया। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने आम लोगों की सृजन शक्ति, कुछ नया करने की अभिप्सा, इन गुणों को हमेशा सराहा है। भारत की विविधता, डाइवर्सिटी, अनेकानेक उत्सव, समारोह, त्योहार, इनका उल्लेख कर प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को दर्शाया है। खादी की लोकप्रियता मन की बात कार्यक्रम की वजह से इतनी बढ़ी कि उसकी बिक्री आसमान छूने लगी और खेल, स्पोर्ट्स को भी जबरदस्त प्रोत्साहन मिला देश में। साथ ही मन की बात कार्यक्रम से आकाशवाणी की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। हाल ही में प्रकाशित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रोहतक के एक अध्ययन के अनुसार देश के लगभग 100 करोड़ लोग मन की बात कार्यक्रम देख चुके हैं। 23 करोड़ लोग मन की बात के नियमित श्रोता या दर्शक हैं और देश के 96% लोग 96% मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। इसी ऐतिहासिक मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए, देखने के लिए आप और मैं, हम सभी यहाँ राजभवन कोलकाता में आज बैठे हैं। आप सभी यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका दिल से सहृदय धन्यवाद। भवन में जो ये मन की बात का प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं और राज्यपाल जी और प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है कि मन की बात का आज 100 एपिसोड है, ये उतना आसान नहीं था। सब मिलके कैसे भारत को आगे बढ़ाया जाए, उसका ही परिकल्पना रचना करते थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उनकी बातों में यही बार बार यही झलक दिखा जाता था कि समाज के हर कोई वर्ग के लोग, हर कोई पेशे के लोग आए और कैसे हमारे देश को एक साथ आगे बढ़ाए। ये जो राजभवन है, इसका गरिमा तो बहुत ऊपर है और देश की बात राजभवन से अगर ऐसे ही फैलता जाए तो ये जो हमारा समाज है उसको एक दिशा मिलेगी। तो उसी कारण हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ। विभिन्न वर्ग के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्र से लोग आए हैं। आपस में बातें चल रही कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मन में कौन सी बात है, जो बात हम लोग सुनेंगे, जो जानकारी हम लोगों को मिलेगा, उससे हम कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। आप जैसे कल्चर का डिपार्टमेंट देख रहे हैं बीजेपी के सेल में, तो अभी आप लोग ने कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी बंगाल के हालात जो हैं, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कल्चर का मतलब सिर्फ गाना, म्यूज़िक, ये सब नहीं है। कल्चर एक हैबिट है, एक परंपरा है जिसमें ये सब कुछ पड़ता है। उसके ऊपर ये जो हमारी सोच है, उस सोच को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं आपस में। बंगाल की कल्चर बहुत रिच है और इसीलिए शायद बंगाल को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस कल्चर को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग उसको वापस ले आना चाहते हैं। ये नहीं कि कोई पुराना ज़माने में जो कल्चरल प्रैक्टिस जो था वो लेके जाए, बल्कि वर्तमान का जो परिस्थिति है, वर्तमान को जीवन है, उसके संग हमारी जो परंपरा है उसको ना भूले, उसको कैसे आदर के संग जोड़ सकते हैं, यही हमारा सोच है। तो आप अपनी संस्कृति बचाना चाह रहे हैं? ये हर कोई भारतीय नागरिक का जिम्मेदारी है अपना संस्कृति बचाए।
धन्यवाद सर। कौन से मठ से हैं? আমি শ্রী পঞ্চায়েতি আখড়া মহানির্বাণীর পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মহামণ্ডলেশ্বর स्वामी परमात्मानंद जी महाराज। मन की बात में जो आप आए हैं उसके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो हमें बताएं। মন কি বাত মোদিজির একটা অনন্য প্রয়াস, যা এর আগে কখনো হয়নি। আর মনে হয় এটাখানেই মোদিজি একদম পথিকৃৎ। এই যে ওনার মনের কথা, দেশের মানুষের অনন্য সাধারণ যে ঐতিহ্য, তাদের প্রচেষ্টা, তাদের প্রয়াস, তার কথা তিনি যে বলছেন, সেটা ঐতিহাসিক দলিলের মতো ভারতবর্ষে চিরকাল মান্যতা পাবে। এবং যেখানে যেখানে প্রান্তে প্রান্তে মানুষের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ভারতকে গৌরবান্বিত করেছে, তাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য ভারতবর্ষ রাষ্ট্রের মতো একটা এত বড় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি যে নিরলস প্রয়াস করছেন, সেটার জন্য তিনি অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ এবং আমরা খুব আনন্দিত, খুশি। धन्यवाद। मन की बात के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम लोग का खुशनसीब है, आप 100 एपिसोड चल रहा है मन की बात का, इसमें हम लोग को इनवाइट किया है। हम लोग आभारी है गवर्नर साहब का, प्रधानमंत्री जी का। देश को जोड़ना है, देश का हर टाइप का किस्म का आदमी है। यहाँ भाषा, धर्म, कलर, जियोग्राफिकल बैरिकेड जो सब है पूरा इंडिया के अंदर, उसको घुचाना है, दूर करना है। जो बैकवर्ड सेक्शन का आदमी है, जो पिछड़े वर्ग का आदमी है, उसका बात प्रधानमंत्री जी ने सुनता है, उसका साथ ट्रांजेक्शन तैयार करता है। देश का जो ओरिजिनल ज्वेल है उसका पूछताछ करता है, ढूंढता है कहाँ मिलता है देश का सब आदमी को, भारतीयत्व बोध को जागरूक करना है। ये काम मन की बात में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो उद्योग है, आपका नाम? काजी मासूम अख्तर है, पद्मश्री अवार्डी भारत सरकार। आपको पद्मश्री कब मिली? 2020 में मिला है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर। ओके, थैंक यू। आभारी है प्रधानमंत्री जी का, ये बरकरार रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ये उम्मीद है हमारा। थैंक यू। सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।